क्या है सुपर बाइक्स का जादू की बाइक प्रेमी है इनके दीवाने। इस हफ्ते सवारी होंडा CBR 1000 RR फायरब्लेड की। साथ में जानिए किसका सौदा कितना खरा, जान है इनोवा में या फिर आगे है टवेरा। देखिए रफ्तार, रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ NDTV इंडिया में। आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड आप हमें जरूर बताइए, अपनी राय जरूर भेजिए, चाहे वो शिकायत हो या फरमाइश, सभी कुछ। रफ्तार में अपने संदेश भेजिए SMS करके 6388 पर, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं feedback@ndtv.com पर। रफ्तार की पूरी टीम को अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाजत। अलविदा, ड्राइव सेफली। रफ्तार में अगले हफ्ते सवारी एक खास बाइक की। जिन सुपर बाइक्स के सभी बाइकर्स हैं दीवाने, उन्हीं में से एक होंडा 1000 RR फायरब्लेड रिप्सॉ। होंडा की रेसिंग बाइक RB211B से प्रेरित इस बाइक में भी है काफी दम। 1000 सीसी का इंजन और 150 bhp की ताकत। देखना ना भूलिए रफ्तार का अगला एपिसोड। You're watching NDTV Profit. This is the Car and Bike Show. Welcome to yet another new program where we bring you the best and the latest from the world of automobiles. Well, like I said, we've got lots on the program today that is very exciting. So first, let's just check out what's coming up. A special vehicle designed for the handicapped. The week's top automobile sector news. And they're bright, they're quirky, the Karma cabs of London. But first, it's something that a lot of you keep demanding every now and then. We get lots of emails and SMSs from you asking to see more super bikes on the program. Well, we have a super bike for you today. It's the Honda Fireblade. Honda CBR 1000 RR Fireblade. Quite a long name for a bike, isn't it? It's the bike that's been inspired by Honda's MotoGP bikes. And this one has features even the company is very excited about, like the Unit ProLink suspension and the electronic steering dampers. And this is one sports bike that also gets head sterning, what with its orange and white paint job, complete with orange alloy wheels too. And even the body graphics are in keeping with the bike's profile. Okay, so what about its engine? It's a 998cc liquid-cooled inline 4-cylinder engine, and it belts out a huge 210 bhp. And you can only truly feel the actual power of this monster when you take it out on a good stretch of open road. The front wheel is equipped with a dual 310mm disc brake, while the rear wheel has a single 220mm disc brake. The bike has a 55.6-inch wheelbase, while the tires are 17 inches. And as far as the gearbox goes, it's a 6-speed transmission. So what about the price then? $11,500, which means close to 12 lakh rupees. So if you really want one, you have to really shell out the dough. The bike is available in 5 color treatments, and since it's a powerful sports bike, never mind the mileage angle. Well, if you must know, 12 to 13 kilometers per liter is what you would get. Every week we bring you vehicles of all shapes and sizes on the show, all the latest wheels to hit the market. But
sadly, in India there are very few vehicles designed specifically for disabled people. Well, a student from the IIT had an idea, and guess what? It just might work. The market is being flooded with new vehicles all the time, but not for those who might really need something new. However, some people are making an effort to change that, like Vishwas Morgere, an IIT Delhi student. He wanted to create a vehicle that would be easy for the handicapped to drive. But as he researched his project, he found that most handicapped people really cringe away from using specially designed vehicles simply because it is difficult for them to climb into them, always needing someone's help. And so what you see on your screens is the fruit of Vishwas's work. तो कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो व्हीकल की, पर्सनल व्हीकल की, कि व्हील चेयर ही खुद आके उसमें लाइक फिट हो जाए और व्हील चेयर पर बैठे बैठे वो व्यक्ति ड्राइव कर सके. तो फिर इन लाइंस पे मैंने काम करना शुरू किया. The vehicle uses a 60cc engine. The costs of the entire project were about 35,000 rupees. Some handicapped students at the IIT have been trying out this new vehicle, and Vishwas is using their feedback to tweak his design. And Vishwas is also trying to figure out a way to bring his creation to the market. A lot of people always ask me, what's the best seating position when you're driving a car? Well, golden rule, you must be comfortable. By that I mean the backrest, the angle of it should be adjusted just how you like it so that you're concentrating on the road and not worrying about being uncomfortable. The other thing to remember is that your seat shouldn't be pushed either too far back or too far forward. How do you know what's the right exact place to be? Well, when you put your hands on the steering wheel, your arm should not be straight. It should be a little bent over here. And how do you know that it's the right, absolute, correct stance? Well, just place your wrist on top of the steering wheel. That's where you need to be. Without actually bringing your shoulder ahead, you should be able to reach out and put your wrist on the steering wheel. That's the correct posture. Well, time for us to take a quick break on the Car and Bike Show, but before that, let's take a look at all the craze for bikes in Bollywood. These sleek beauties have roomed past starstruck youngsters, leaving behind a trail of dazzled fans. From Amitabh Dharmendra's Ye Dosti to Kamal Hassan's love story in Ek Duje Ke Liye. When I was 18, मैंने co-own किया एक मोटरसाइकिल को. It was a BSA scrambler, matchless scrambler. वही मोटरसाइकिल को मैंने इस्तेमाल किया एक दूजे के लिए. मैं It's an old lady, but fantastic bike it was. That was शायद मैं सिर्फ I was the only star who went to shootings after becoming a star on a motorcycle. From heroes on bikes mounted on a trailer to fast bikes, rough action sequences and a thrilling story. The film Dhoom was quite a rage, and the real heroes, these Hayabusa motorbikes. John Abraham's 1300cc red and black Suzuki Hayabusa, Uday Chopra's 1200cc Yellow Bandit, and the True-Pace black and silver 600cc Suzuki GSX R600s. And here's what John has to say about his lady love, with whom he zooms down the streets of Mumbai till the wee hours of morning. ये दो ही चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है एक्चुअली लाइफ में, ऑनेस्टली, मोटरबाइक्स और एनिमल्स. और आई हैड ग्रेट लक क्योंकि बाइक्स के साथ मैंने यशराज के साथ काम किया, अभी जानवरों के साथ मैंने धर्मा के साथ काम किया. सो आई हैव गॉट द बेस्ट टू प्रोडक्शन बैनर्स वर्किंग विद द थिंग्स आई लव द मोस्ट. But this cop from Dhoom had a hard time riding his bike. फिल्मों में आने से पहले मैं बाइक चलाता ही नहीं था. साइकिल ज़रूर चलाता था, लेकिन माँ और डैड ने कभी अलाउ नहीं किया था कि बाइक चलाने के लिए. सो इस फिल्म के पहले उदय मुझे बाइक सिखाने के लिए ऊपर नीचे घुमाते रहते थे, जॉन भी सिखाते थे हमें. सो बेसिकली जस्ट बिफोर दिस फिल्म. Waqt, a race against time, saw Akshay Kumar with one of his prized possessions, his sports bike. In fact, to reach film sets on time, he generally prefers his bike to his swanky Mercedes. I've struggled on bike all my life when I was wanting to come in this line. So I used to travel on bike. I had this plastic bag with full of my photographs and all. So I had this 100cc bike. Now, by grace of God, I have a very good bike now.
Not just Bollywood, but a Telugu film, Super, is on the same lines as Dhoom. Since this film has many bike chases, several bikes worth 10 lakh rupees each have been imported just for this production. 3 Australian champion race bike riders have been taken on to work for this film. But some stars actually prefer their cycles to motorbikes. Salman Khan, for one, rides a cycle every day. So next time you halt at a traffic signal, look closely. You may spot a star on 2 wheels. Welcome back to the program. Well, now it's that time of the show when we jump into all the news from the week gone by in our sector snapshot. Maruti's first quarter sales are up just 3.2% year-on-year, but include the exports and the picture is a bit dismal. This comes on the back of just a 4.6% rise in June 2005 sales over last June. And it's been like that the last few months. The 800 continuing to drag things down. This time it's a 40.6% dip. Overall, for the quarter, 800 sales are down almost 40%. Hero Honda sales stayed well above the 2 lakh units mark in June, up 12.5%. I think there was a supply constraint from a few vendors, and I think they continued even in the month of June. And we seem to have lost a few thousand bikes. And we expect that our numbers in July, August should be much better than what we have done now. Bajaj clocked 161,000 units in June. That includes almost 131,000 motorcycles. And finally, TVS Motor. Again, the year-on-year growth looking positive with an 18% overall sales increase. But now let's look at the sales for the last quarter overall. The two-wheeler companies, Hero Honda first, flat growth through the quarter. And pretty much the same picture holds true for Bajaj. TVS showing minor growth month on month. The ordinary three-wheeler has just got a much-needed makeover. 2 updated models of the auto rickshaw have just been launched in Pune, called Agni and Parinda. They are priced at over 1 lakh rupees and will be available in Maharashtra, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. Our very first product is the three-wheeler. Our charter includes many, including an electric vehicle. The first products from our stable is, as you see, the Agni and the Parinda. Agni, which is a 1-tonner goods carrier, and Parinda, which is a 3-seater passenger carrier. There are many unique features about the vehicle, which starts right from the nose and ends up even the rear bumper of the vehicle. The company plans to launch 4 more models in the next 6 months, including air-conditioned auto rickshaws and rickshaws designed for school children. Export prospects look promising as well, with orders from Sri Lanka already coming in, and inquiry from US for auto rickshaws with electric motors. Well, kids will only start driving once they're 18 and they get their license, but it's never too early to start learning a little bit about the traffic rules. That's right, especially in a country where most people seem to break the rules rather than follow them. Like I said, it's always good to teach your kids the right thing to do. Well, ex-commissioner of Delhi Traffic Police, Maxwell Pereira, did just that with a bunch of Delhi school children. Summer vacations is a great time to get your children for an educational trip to the Delhi school. It is important that children know the right rules and regulations of traffic early in life. Keeping this in mind, today we have a special guest helping us teach these children what traffic signs are. Former Joint Commissioner Delhi Police, Mr. Maxwell Pereira. It is amazing to see how fast a child learns the instructions and rules when taught to them. And so it is important to teach them the correct ones. This traffic school has its unique way of teaching you about road safety.
It gives you a cycle to ride around the marked areas that gives you a feel of actually being in a real traffic situation. All the road dividers, the traffic lights, the road signs, etc. There is also a traffic policeman to teach you what his hand movements are meant to indicate. It is a great place to practice and learn before going out on those monstrous roads. The kids, of course, had hundreds of questions to ask, so we let them loose at the former commissioner. You walk on the road? The car going down, up and down, what does it mean? The signal of a car going up, which means climbing, which means there is a steep gradient or a steep climb for which you need to prepare yourself. You need to change the gear to a lower gear. The car has got more power to climb. When it is a car going down symbol, then it is, you must see, look at the car, you will see it's on a very steep climb down, that is descent, and that is necessary because your brake should be in order, your gear should be lower so that the vehicle is totally under control. Okay, that you should be careful of. Why are children not allowed to drive until they are 18? Children are not allowed to drive because children are very precious to their parents, and no one wants the children to be harmed, to get into problems or to be lost. Number two, the children need to get a level of maturity where their excitement is curbed, their fighting and competitive nature is curbed, and that is under control. And psychologists feel that till the age of 18, children are not mature enough. When commercial vehicles pass the border, why do they need to pay toll tax? Commercial vehicles carry goods, and goods from outside, when they come to enter a city, are taxed, so that tax goes towards, preparing the roads and developing other infrastructure. What does the flood gauge mean? The flood gauge is because, like in Delhi, when it rains, we have water on the roads. The drainage system is not good enough. But Delhi has got very little rain. There are places where there are large floods and lots of water collects not only on the road, everywhere, and you do not have your bearings. And that is the time a water gauge, flood gauge, will tell you how high the water is. Is it at 1 meter level? Is it at 2 meter level? And especially at bridges, where there are rivers, you are told, the level of the river, and how much more if the river rises, it will come into the road. These are very necessary to know, otherwise there can be danger. So children, remember, you have to be disciplined. Without discipline, you cannot have a good life ahead. And while on the road, you need to learn the language of the road. Without a language, you will not be able to understand the other road users and the facilities there on the road for you. And by understanding the road language, by being disciplined in your total personality, you will become a wonderful citizen for this country. Alright, we spoke about the correct seating posture a little earlier in the program, but what about how to handle the wheel? Well, you see a lot of people driving these days and they tend to do this when they're turning the wheel. That's not really the best thing to do because you actually are letting go of a little bit of control on the car. What's the best way to do it? Well, you turn without taking your hands off the wheel. And if you need to take a really, really sharp turn, maybe it's a U-turn, then the hand that's underneath comes over the top and you continue the turn this way. And when you're coming back, you do exactly the same thing. Always remember, never get your hands off the wheel. They always should stay at about this position, 3 o'clock, 9 o'clock. That's probably the best position to be in. And never take your hands off the wheel. So always remember that. Time for a quick break on the Car and Bike Show. We will be back in a flash. Stay tuned. Welcome back to the Car and Bike Show on NDTV Profit.
Well, now to some they are weird, to some they're just a little interesting, and to others, especially all the desis living in London, they're just a sheer treat to the eyes. I'm talking about all the ambassadors that are running around the streets of London as karma cabs. An ambassador parked outside a Notting Hill address, an upmarket London neighbourhood. No, it's not simply memorabilia flaunted by a rich NRI, but part of a growing fleet of karma cabs, a quirky taxi service run by British businessman Tobias Moss. A die-hard fan of Indian culture, Moss says the idea behind the taxi service is to give the English a taste of Indian culture in London. For Moss and his wife Heather, it's not been an easy journey. Other than the problem of getting the cars to London, it's also been tough to have their dream materialize and get the cars rolling on the streets of London. The good old Ambi is way behind in terms of technology if compared to other cars in the same category. And stringent pollution standards have meant even more effort and cost gearing the cars up to meet those norms. We actually give peace and love to people. Om Shanti. And we give love, hopefully. Okay, so what about the actual ride? Specially upholstered ceilings, elegantly embroidered seats, soft Indian music, and the all too familiar fragrance of sandalwood incense. The Indian experience is complete the moment you slide into one of these Ambis. But all this comes at a price. How does £40 an hour sound? That's about 3,000 Indian rupees. An interesting idea, isn't it? But the sight of the retro look Ambi all decked up evokes a mixed response from Londoners. For many, it's truly awe-inspiring. Everybody in our life is a Maharaja and a Maharani. Everybody is a prince and a princess. For many, it's truly awe-inspiring. For a few, it's a journey down the memory lane, reminding them of the Morris Oxford, the car that gave the ambassador its look. But for Indians living far away from home, it's a welcome addition to London traffic. Well, that's it on the Car and Bike Show this week. What did you think of the program? Tell us at cnb@ndtv.com. That's our new email ID, of course. Or you can send us a text message at 6388 NDTV on your cell phone keypad. Well, that's it then. Stay tuned to NDTV Profit for the latest business news. Keep your seatbelts on till next week. Goodbye. ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। स्वागत है आपका रफ्तार। वैसे तो काफी धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम है बारिश का। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आज के एपिसोड में एक अलग तरह की बारिश लेकर हम आए हैं। वो बारिश जो है हिंदुस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल जगत के सारे एक्शन की, चाहे बात टू व्हीलर की हो, चाहे फोर व्हीलर की, अंतर्राष्ट्रीय जगत के मोटर स्पोर्ट्स की बात हो या फिर हो ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जानकारियों की, सभी कुछ है। तो आइए जानते हैं कि अगले 30 मिनट में क्या क्या खास है आपके लिए। आज के एपिसोड में देखिए सवारी होंडा CBR 1000 RR की, जानेंगे किसमें कितना है दम, टक्कर इनोवा और टवेरा के बीच, और इसके अलावा जानेंगे क्यों स्पेशल अपीयरेंस दे रही हैं बाइक्स हिंदुस्तानी फिल्मों में। रफ्तार की शुरुआत करते हैं एक नई बाइक के साथ। वैसे बहुत नई इस बाइक को नहीं कहा जा सकता, यामाहा फेजर से आप भी परिचित हैं। रफ्तार में हम पहले भी इसकी सवारी आपको दिखला चुके हैं, इसे परख चुके हैं। लेकिन यामाहा अपने 50वें साल में काफी जोश में है और कई नए बाइक्स, नए वेरिएंट्स लॉन्च कर रही है, और फेजर के भी नए वेरिएंट्स हमें देखने को मिले, DX और LX। आइए करते हैं सवारी। अपनी 50वीं सालगिरह मना रही यामाहा ने हाल ही में लॉन्च किए अपने 125 सीसी सेगमेंट के बाइक फेजर के नए वेरिएंट्स DX और LX, जिनमें से आज पेश खिदमत है फेजर DX।
यामाहा आजकल ओवरड्राइव में, जैसा कि आपने रफ्तार में भी देखा होगा, इसके कई नए वेरिएंट्स हमने देखे। बात अगर क्रक्स की हो चाहे लिबेरो की। वैसे हिंदुस्तानी बाइक बाजार में हालत बहुत अच्छी नहीं है यामाहा की, जैसा कि हम सभी जानते हैं। टॉप 3 पोजीशन में भी नहीं है, इतनी नामी कंपनी होने के बावजूद। बहरहाल अभी कोशिश कर रही है अपने 50वीं सालगिरह पर नए तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करके कि भारतीय बाजार का तिलिस्म वो एक बार फिर से तोड़ पाए। LX और DX में फर्क है डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का, जो कि सिर्फ DX में है। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक्स की। बहुत नयापन नहीं है बदलाव के नाम। नए तरह के बॉडी ग्राफिक्स बाइक को एक ठोस और मजबूत लुक जरूर देते हैं। बाकी सब कुछ कुल मिलाकर वही है जो पुराने फेजर में देखने को मिलता था, जिसमें काफी जोर अभी भी डुअल हेडलैम्प्स पर दिया जाता है, जो कि मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स। कंपनी अपनी सभी बाइक्स को नए तरीके से लॉन्च करना चाहती है। मकसद यूटिलिटी बाइकिंग से प्लेजर बाइकिंग सेगमेंट में जाना। बॉलीवुड से कई इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, जिसमें से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है। अब अगर धूम जैसी फिल्मों की बात करें तो उस फिल्म के बाद हजारों इंक्वायरीज आ गई हिंदुस्तानी बाइक निर्माताओं के पास, उन बाइक प्रेमियों की जो चाहते थे बड़ी और ताकतवर बाइक्स। और इसी फिल्म से चमके थे जॉन अब्राहम भी, जिसे कि यामाहा ने हथियाया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। और एक सीरियस बाइकर की छवि के साथ जॉन, अगर लोगों को कहें, बाइक प्रेमियों को कहें, यामाहा की बाइक्स खरीदने के लिए, तो शायद कंपनी को फायदा पहुंच सकता है। बहरहाल बाजार में अगर टिकना है और मुनाफा कमाना है तो फिर ब्रांड एम्बेसडर से ज्यादा बाइक के प्रदर्शन पर निर्भर करना पड़ेगा, जिसके लिए नजर डालनी होगी इसके फीचर्स पर। इसमें लगे इंजन की बदौलत बाइक को मिलती है 10.8 bhp की ताकत और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पहले बिना सेल्फ स्टार्ट और डिस्क ब्रेक ऑप्शन के लॉन्च हुई फेजर ने बाद में अपना अपडेट किया हुआ रूप दिखाया लिमिटेड एडिशन और DLX वर्जन के तौर पर। बहरहाल 4 गियर वाली बाइक है ये 1300 mm के व्हील बेस के साथ। जहां तक यामाहा फेजर के इंजन का सवाल है, 123.7 सीसी इंजन और जिसमें ताकत है 10.8 bhp की। चुस्ती बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी और एक और कमी आपको खल सकती है, वो 5वें गियर के ट्रांसमिशन। वैसे कमी आपको फ्यूल गेज की भी लग सकती है। एक फीचर के तौर पर आप बाइक चलाते हुए टैकोमीटर के जरिए अपने RPM तो माप सकते हैं, लेकिन पेट्रोल की हालत नहीं। बहरहाल जिस उम्मीद के साथ कंपनी इन बाइक्स को लॉन्च कर रही है, उसे देखते हुए हम यामाहा को शुभकामना ही दे सकते हैं। हिंदुस्तान में सुपर बाइक्स के लिए दीवानगी इस कदर बढ़ गई है कि नौजवान ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि सुपर बाइक्स किन्हें कहा जाता है। और रफ्तार में भी दर्शकों की फरमाइशों की ढेर लगी रहती है, जो देखना चाहते हैं ज्यादा ताकत और ज्यादा रफ्तार वाली सुपर बाइक्स। तो रफ्तार में आज हम आपके लिए एक ऐसी ही सुपर बाइक लेकर आए हैं, जिसका नाम है होंडा CBR 1000RR फायरब्लेड। भारतीय बाइक प्रेमियों को याद होगी उस बाइक की जो होंडा भारत में अपनी बाइक यूनिकॉर्न के लॉन्च के वक्त साथ में लाई। होंडा की चैंपियन रेसिंग बाइक RC211V। और साथ में आए थे जाने माने MotoGP राइडर एलेक्स बरोस, जिन्होंने अपनी इस बाइक के बारे में भी बताया। बहरहाल वो 4 स्ट्रोक V5 इंजन, जिसकी क्षमता थी 990 सीसी की और ताकत लगभग 240 bhp की थी। और उसी की विरासत के तौर पर पेश है होंडा CBR 1000RR फायरब्लेड। होंडा की MotoGP चैंपियन बाइक से प्रेरित ये बाइक रिप्सॉ, वो सुपर बाइक जिसमें कि ऐसे नए फीचर हैं जिसके बारे में कंपनी काफी उत्साहित है, और उनमें से काफी के बारे में तो भारतीय बाइक प्रेमियों ने सुना भी नहीं होगा, जैसे यूनिट प्रो लिंक सस्पेंशन, नई होंडा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर वगैरह। बहरहाल देखने में तो ये बाइक बिल्कुल उसी बाइक की तरह दिखती है, लेकिन ये है उसका स्पोर्ट्स बाइक अवतार। नारंगी और सफेद का एक ऐसा मेल देखने को मिलता है जो अपने आप में बहुत ही स्पोर्टी लगता है। यहाँ तक कि नारंगी अलॉय व्हील्स भी। पूरी फेयरिंग वाली इस बाइक के ग्राफिक्स इसके मूड की झलक दे देते हैं। मेरे को जो सबसे अच्छी बात इस बाइक में लगी है वो इसके कलर कॉम्बिनेशंस। मैंने बहुत सी 1000 सीसी बाइक्स चलाई हैं, बट ये बाइक्स दूसरों से बाइकों से थोड़े हट के है। एक तो इसका कलर कॉम्बिनेशंस और दूसरा इसका जो फ्यूल इजेक्टेड बाइक है और अंडर एग्जॉस्ट है। इसका जो एग्जॉस्ट है अंडर द सीट के नीचे से निकल के जाता है। इस बाइक के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले इसका इंजन।
998 सीसी लिक्विड कूल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, डुअल स्टेज फ्यूल इंजेक्शन कार्बोरेशन। इस इंजन की बदौलत निकलने वाली 210 bhp की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसकी झलक तभी मिल सकती है जब आप इसे लेकर खाली हाईवे पर निकलें। बहरहाल हिंदुस्तान में तो पहले ऐसे रास्तों को खोजने की मशक्कत है और जब मिल जाए तो फिर खींचिए संभाल कर। और अगर रास्ते में कुछ रुकावट आए तो फिर ब्रेकिंग के बारे में भी बता देते हैं। अगले पहिए में लगा है डुअल फुल फ्लोटिंग 310 mm डिस्क ब्रेक और पिछले पहिए में सिंगल 220 mm डिस्क ब्रेक। 55.6 इंच का व्हील बेस। इसके सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। आगे है इन्वर्टेड HM AS कार्ट्रिज फोक और पिछले सस्पेंशन है HM AS प्रोलिंग सिंगल शॉक प्रीलोड के साथ। टायर हैं 17 इंच। बहरहाल इसकी कीमत के बारे में भी बता दें, लगभग $11,500 की इस बाइक को भारत लाने में खर्च लगभग 12 लाख रुपए तक आ सकता है। तो अगर आप ऐसी सवारी के लिए हैं बिल्कुल दीवाने तो फिर टटोलिए अपनी जेब को। 5 रोमांचक रंगों में मौजूद रेप्सॉल की माइलेज पर अगर सवाल है तो वो वाजिब नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह की बाइक का माइलेज पूछना थोड़ी बेहद भी हो सकती है। बहरहाल हम आपको बता ही देते हैं इस बारे में भी, लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर। तो कैसी रही मुलाकात होंडा CBR 1000 फायरब्लेड के साथ? एक तो 1000 सीसी की बाइक और ऊपर से स्पेशल रेसिंग एडिशन रेप्सॉल। ऐसी बाइक्स को चलाने का मौका हिंदुस्तान में बहुत कम को ही मिलता है और जब मौका मिले तो फिर चूकना नहीं चाहिए। इतनी तेज बाइक सवारी के बाद एक ब्रेक लेना तो लाजमी है, तो हम लेते हैं एक ब्रेक। आप अपने संदेश टाइप कीजिए अपने मोबाइल फोन पर और SMS कीजिए 6388 पर या फिर ईमेल कीजिए feedback@ndtv.com पर। लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद एक बहुत ही खास सवारी टक्कर है इनोवा और टवेरा के बीच। रफ्तार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बारी है 2 गाड़ियों की सवारी। वो 2 गाड़ियां जिनकी सवारियों को हम जांचेंगे और बताएंगे कि उनमें से कौन सी है बेहतर किस तरह के ग्राहक के लिए। ये टक्कर है इनोवा और टवेरा की। अगर आप इन दोनों गाड़ियों की तरफ देखें तो सीधी सी बात है, ये बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। लेकिन अगर बाजार के नजरिए से देखा जाए तो फिर दोनों मल्टी यूटिलिटी व्हीकल या MUV कहलाती हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों की जो कीमतें हैं वो भी कुछ हद तक सामान्य ही हैं। इसीलिए आज हम इन दोनों की बात साथ में कर रहे हैं। तो आइए आपको थोड़ी और जानकारी दे दें इन दोनों गाड़ियों के बारे में और आपको परिचित कराएं टोयोटा इनोवा और शेवरोलेट टवेरा से। टोयोटा इनोवा शुद्ध रूप से एक बड़ी फैमिली कार कही जा सकती है, जो कि बनाई गई है IMB प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म को टोयोटा ने इसी मकसद से बनाया था कि बढ़ते कंपटीशन के दौर में इस प्लेटफॉर्म पर कई गाड़ियां निकाली जा सकें, जिससे कि कंपनी वो मॉडल निकाल सके जिसकी जरूरत दुनिया भर में अलग अलग बाजारों में होगी। तो दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट के बाजार में अपनी धाक जमाने के बाद इनोवा आई भारत और यहाँ आने के बाद भी इस बाजार में बिक्री अच्छी रही है। इनोवा के 5 वेरिएंट हैं, जिनमें से सभी पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्पों के साथ मौजूद हैं। हालांकि एंट्री लेवल इनोवा बहुत ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाई है, लेकिन हाई एंड इनोवा ने बिक्री के बेहतर रिकॉर्ड दिखाए हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जो चाहते हैं एक आरामदायक बड़ी गाड़ी या फिर केवल पूरे परिवार के साथ चलने के लिए घर में एक दूसरी कार। जिस शेवरोलेट टवेरा को हम भारतीय सड़कों पर भागते देखते हैं वो दरअसल इसूजू पैंथर है। मई 2004 में लॉन्च हुई टवेरा को लोगों ने पसंद किया क्योंकि तब तक बाजार में पकड़ बनाई हुई क्वालिस के बेसिक और पुरानी लुक से उभरे लोगों को एक नयापन तो मिला। लेकिन फिर भी बिक्री के मामले में क्वालिस ही आगे रही जनवरी 2005 तक, जबकि क्वालिस को बाजार से हटा लिया गया था। और क्वालिस के बाजार से बाहर जाने से तो GM की चांदी हो गई, क्योंकि जिस रोल में क्वालिस फिट थी वही रोल यानी सर्विस सेक्टर के लिए टवेरा ने दावेदारी कर दी। वहीं अपनी बेहतर लुक की वजह से ये फैमिली कार भी बन गई। टवेरा के 6 वेरिएंट है और इसके हाई एंड में एलॉय व्हील्स और तीनों कतार की सीट के लिए AC है।
दोनों ही गाड़ियां एमयूवी सेगमेंट के खिलाड़ी हैं। वैसे इस सेगमेंट में महिंद्रा बोलेरो और टाटा सुमो विक्टा की भी मौजूदगी है, लेकिन असली बिक्री तो शेवरले और टोयोटा की ही है। और लॉन्च के समय से इनोवा को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर उतारा गया था। इस सेगमेंट के लिए जरूरी है कि कौन सी एमयूवी सर्विस सेक्टर के लिए पसंदीदा बनती है, जिसमें टवेरा कहीं आगे है। जब आप इतनी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी जगह की ज़रूरत है। दोनों गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट हैं जिनमें 7 या 8 लोग बैठ सकते हैं। सामान रखने के लिए अलग से जगह है। लेकिन बड़ी गाड़ी में दूसरी ज़रूरी बात होती है ताकत की, और दोनों गाड़ियों में लगे हैं 2.5 लीटर के इंजन। टवेरा का इंजन है डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसकी पावर आउटपुट या क्षमता है 80 bhp की। ये काफ़ी केपेबल इंजन है, लेकिन थोड़ी पुराने स्टाइल का है। इनोवा का जो इंजन है वो भी 2.5 लीटर का है जैसे मैंने कहा, लेकिन इसकी जो पावर आउटपुट या क्षमता है वो है 102 bhp की। और ये कॉमन रेल डीजल इंजन है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट भी है। माइलेज के हिसाब से भी कुछ बेहतर है। टवेरा की जो अंदर की स्टाइलिंग है वो भी बाहर की तरह एक दशक पुरानी नजर आती है। बहुत ही पुराने स्टाइल का डैश है, लेकिन ये क्योंकि एक टॉप एंड मॉडल है जो आज हम चला रहे हैं, इसमें एक वुड फिनिश डैश, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। ओवरऑल काफ़ी बेसिक, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जो सीटिंग पोजीशन है, जो ड्राइविंग पोजीशन है इस गाड़ी में, वो बहुत कंफर्टेबल है। और जो विजिबिलिटी रोड की मिलती है वो भी उम्दा है। आइए अब बात करते हैं टोयोटा इनोवा के इंटीरियर्स की। जाहिर सी बात है, देखते ही पता चलता है दोनों में बहुत फ़र्क है। इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न या नया फील देते हैं। डिज़ाइन भी बहुत ही उम्दा है, फिट और फिनिश उम्दा है। इसमें एक सीडी प्लेयर है बिल्ट इन डैश में, और ये वुड फिनिश भी है। 2-3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें डुअल एयरबैग्स हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड रिव्यू मिरर्स भी हैं। इसलिए ओवरऑल अगर दोनों गाड़ियों की तुलना करें तो फिर इनोवा काफ़ी बेहतर है। तो फैसले के तौर पर तो कह सकते हैं कि एक एमयूवी के तौर पर टवेरा बेहतर है और फैमिली कार के तौर पर इनोवा। टवेरा में कुल मिलाकर शहरों और छोटे शहरों में ग्राहकों को आकर्षित करने वाली खासियतें हैं, साथ में मजबूत और स्पोर्टी लुक भी। वहीं इनोवा उन परिवारों के लिए है जो चाहते हैं एक बड़ी गाड़ी की सुविधा और छोटी गाड़ियों वाले आराम। रफ्तार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने संदेश हम तक जरूर भेजिए। अपना मोबाइल फोन उठाइए, संदेश टाइप कीजिए, SMS कीजिए 6388 पर, या फिर ईमेल कीजिए feedback@ndtv.com पर। लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद वो फॉर्मूला कार जिसे बनाया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों की एक टीम ने। रफ्तार में अब बारी है उस गाड़ी की जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत कर रहे थे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम डिफाइंस रेसिंग ने बनाई एक और फॉर्मूला कार जो कि 2005 स्टूडेंट फॉर्मूला कंपटीशन के लिए लंदन जा रही है। आइए देखते हैं किस तरह से बनी ये कार और क्या खास बदलाव है इस साल। उठा पर्दा और निकला हीरो। जी हाँ, वैसी ही बेकरारी थी हमें भी जब हम पहुंचे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साइंस ब्लॉक में। टीम डिफाइंस रेसिंग ने तीसरी बार तैयार की एक नई स्टूडेंट फॉर्मूला कार, वो जो आने वाले 7 से 10 जुलाई तक होने वाले फॉर्मूला स्टूडेंट वर्ल्ड कंपटीशन में हिस्सा लेगी, जो मुकाबला होगा लीसेस्टर यूके में, जिसे लंदन की IMAC और सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के गठजोड़ से आयोजित किया जा रहा है। इस बार टीम ने अपनी कार को फ्लैग ऑफ करने के लिए ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक लाने वाले राघवेंद्र सिंह राठौर को आमंत्रित किया। इस साल इस कार में हर तरीके के बदलाव लाए गए हैं, जिसके लिए 16 सदस्य की टीम डिफाइंस रेसिंग ने 1 साल तक कड़ी मेहनत की। जहां पिछले साल के मुकाबले इस बार की कार ज्यादा स्टाइलिश लग रही है, वहीं इस डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जोर वजन कम करने पर लगाया गया है। इस साल कार का वजन 300 किलोग्राम है। फ्रेम को डिज़ाइन में हमने ड्राइवर बहुत आराम से इस गाड़ी में बैठ जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका डिज़ाइन किया है। हमने वेट कट डाउन करने की पूरी कोशिश की है। जहाँ पे हम ट्यूब्स को कम यूज़ कर सकते थे, हमने वहाँ यूज़ किया है। हमने ट्रायंगुलेशन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे दी है। वैसे इस बार टीम का 3 साल का तजुर्बा जवाब देने लगा था, जब वो नए इंजन के साथ प्रयोग करना चाह रहे थे।
पहले 8 महीने जिस इंजन पर यह टीम भरोसा कर रही थी, उसका सहारा इस टीम को छोड़ना पड़ा और आखिरकार इस टीम ने इस्तेमाल किया एक पुराना हिंदुस्तानी इंजन। उन्होंने इस कार में रॉयल एनफील्ड का 500 सीसी इंजन लगाया है। आखिर तक खिंचे इंजन के इस जद्दोजहद से पूरी टीम परेशान हो गई थी। जिस कंपटीशन में जाते हैं वहाँ पे मैक्सिमम टीम सुपर बाइक्स और रेसिंग इंजन यूज़ करते हैं, बट उनकी अवेलेबिलिटी इंडिया में उनके स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बुलेट का इंजन बीइंग वेरी पावरफुल 500 सीसी इंजन यूज़ कर रहे हैं और इसके स्पेस की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एक्सपर्टीज़ काफ़ी मिल जाती है, and there is so much to learn from this very basic engine, so we have put in this engine and extracted the maximum power from it. लेकिन तजुर्बे काम जरूर आ रहे हैं। जहां पहली बार इन छात्रों को स्पॉन्सरशिप के लिए माथापच्ची करनी पड़ी थी, वहीं अब इन टीमों के बेहतरीन प्रदर्शन और प्रचार की वजह से ये सब आसान हो गया है। पिछले 2 साल की प्रिपरेशन के बाद इस साल लगता है इनिशियली हमारे को काफ़ी इजी था डिज़ाइन करना। वी मेड सम सिंपल चेंजेस जिसकी वजह से पिछली बार गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बेस्ट पार्ट दिस टाइम वाज द इंटरेस्ट टेकन बाय द स्पॉन्सर्स। स्टूडेंट फॉर्मूला रेस में इंजीनियरिंग के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। टक्कर होती है सभी टीमों द्वारा बनाई गई एक सीट वाली रेसिंग कारों के बीच, जिसके लिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की टीमें हिस्सा लेती हैं। कारों के लिए 610 सीसी तक का इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है और इन कारों को 3 कैटेगरी में जांचा जाता है। एक तो इनकी बाहरी बनावट और इंजीनियरिंग डिजाइन, इसके अलावा एकल परफॉर्मेंस स्टाइल और फिर हाई परफॉर्मेंस ट्रैक इंड्योरेंस। कुल मिलाकर इस कार का प्रदर्शन बेहतरीन होना चाहिए और इसके अलावा ब्रेकिंग और हैंडलिंग भी। डीसी देश में इकलौता ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है जिसके छात्रों की 3 टीमें दुनिया भर के अलग अलग मुकाबलों के लिए कई तरह की गाड़ियां बना रही हैं और दुनिया के हर कोने से सम्मान जीतकर आई भी हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन रफ्तार का सफर जारी है। आप अपने संदेश भेजिए SMS करके 6388 पर या फिर ईमेल कीजिए feedback@ndtv.com पर। अब रफ्तार में बॉलीवुड स्पेशल कहानी। धूम जैसी फिल्मों ने बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी के अंदर बाइक्स का क्रेज बढ़ा दिया है, लेकिन ये पहला मौका या पहली फिल्म ऐसी नहीं थी जिसके अंदर बाइक्स पर हीरो या हीरोइन घूमते हुए नजर आए। आखिर क्या वो खास बात है जिसके लिए वो हॉलीवुड में ऐसी जबरदस्त गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं? आइए जानते हैं। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। अमिताभ और धर्मेंद्र ने ये दोस्ती निभाई बाइक्स पर और फिर बाद में इन्हीं पर चढ़कर कमल हासन ने गुनगुनाया एक दूजे के लिए जैसा गीत। वाकई तेज रफ्तार से बहुत प्रेम है हमारे फिल्म सितारों को, चाहे मामला प्रेम प्यार की रोड का हो या असली रोड का, और यही वजह है कि इनमें से कई शिद्दत से मोटर बाइक्स के दीवाने हैं। कमल हासन की ही मिसाल लीजिए, जो बाइक पर सवार होकर फिल्म एक दूजे की शूटिंग करने पहुंचते थे। ये रानी आज भी कमल के घर के पिछवाड़े में सुस्ता रही है। मगर वक्त के साथ कमल के दिल में रफ्तार प्रेम कम नहीं हुआ। अपनी फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में उन्होंने इतनी तेजी से बाइक चलाई कि वो हाथ ही थोड़ा बैठे। एक वो जमाना था जब हीरो को बाइक पर बैठाकर ट्रक पर रख दिया जाता था और ऐसे शूटिंग की जाती थी जिससे लगे कि हीरो फर्राटे से बाइक चला रहा है। फिर बारी आई मोटरसाइकिल पर एक दूसरे का पीछा करने की। कहीं कहीं तो हीरो की जगह 1000 सीसी की हायाबूसा जैसी सुपर बाइक्स ने ले ली। धूम में इसी बाइक को एक चोर ने चलाया और धमाका कर दिया। आज भी ये चोर रात के अंधेरे में अपनी सुपर बाइक पर निकलता है, न जाने किसका दिल चुराने के लिए। दो ही चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है एक्चुअली लाइफ में, ऑनेस्टली, मोटर बाइक्स और एनिमल्स। और आई हैड ग्रेट लक क्योंकि बाइक्स के साथ मैंने यशराज के साथ काम किया, अभी जानवरों के साथ मैंने धर्मा के साथ काम किया। सो आई हैव गॉट द बेस्ट 2 प्रोडक्शन बैनर्स वर्किंग विद द थिंग्स आई लव द मोस्ट। चोर चाहे दमदारी से बाइक चलाए, मगर ये है वो पुलिस वाला जो बाइक पर चढ़ने से ही कतराए। फिल्मों में आने से पहले मैं बाइक चलाता ही नहीं था। साइकिल ज़रूर चलाता था, लेकिन माँ और डैड ने कभी अलाउ नहीं किया था कि बाइक चलाने के लिए। सो इस फिल्म के पहले उदय मुझे बाइक सिखाने के लिए ऊपर नीचे घुमाते रहते थे, जॉन भी सिखाते थे हमें। सो बेसिकली जस्ट बिफोर दिस फिल्म। चोर पुलिस
से दूर ये है वो खिलाड़ी जो मुंबई के ट्रैफिक जैम से बचते हुए वक्त पर शूटिंग करने पहुंचता है, मोटरसाइकिल पर सवार होकर। चमचमाती मोटरसाइकिल, रोड से रगड़ खाते टायर और पीछे उठता धूल का गुबार। जहां बॉलीवुड में मोटर बाइक्स का काफिला धूम 2 के साथ बढ़ रहा है, वहीं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन भी कमर कसकर बाइक पर बैठ गए हैं अपनी फिल्म सुपर के लिए। वैसे तो इस हीरो को भी मोटर बाइक से कुछ कम प्यार नहीं, मगर इनके सामने बिना इंजन वाली बाइक भी आ जाए तो कम खुश नहीं रहते। ठंड, गर्मी या हो बरसात, सलमान रोज चलाते हैं साइकिल। शोले के जय प्रसाद समुद्र पार जाकर साइकिल चलाते हैं और याद करते हैं मुकद्दर के सिकंदर के मोटर बाइक वाले दिन। तो अगली बार जब आप सिग्नल पर खड़े हो, हरी बत्ती का इंतजार कर रहे हो, आसपास जरूर देख लीजिए कि कहीं पास में कोई हीरो बाइक लिए तो नहीं खड़ा। रफ्तार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड आप हमें जरूर बताइए। SMS कीजिए मोबाइल फोन से 6388 पर या फिर ईमेल कीजिए feedback@ndtv.com पर। अगले हफ्ते तक के लिए रफ्तार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अलविदा, ड्राइव सेफली।